بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ یہ دونوں سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین صرف 180 بار پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب اور مستند وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ پاک اس شخص پر اپنا کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے گا وہ چیز سونے جواہرات کی طرح قیمتی بن جائے گی۔ یہ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت باقی نہیں بچے گی جو کہ قبول نہ ہوئی ہو۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ 100% گارنٹی کے ساتھ کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھل جائیں گے، ایسی ایسی انوکھی کرم نوازیاں اس پر ہوں گی کہ اس کی زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھنے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ 2 نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پر 180 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو آپ نے 180 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہو بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجت کو بیان کر کے اس کا حل مانگنا ہے، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ سے بیان کرنے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مسائل رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں گا، ان کے فراوانی کر دوں گا، تم پر کھول کے رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو ہمارے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اللہ پاک تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو ہماری ہر حرکت سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو آج کا یہ وظیفہ اسی لیے خاص ہے۔ اس وظیفے کی مناسب سے میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ یہ وظیفہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، کثرت سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ واقعہ بھی اسی وظیفے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ان کا لکھا جو یہ کلام اللہ تھا۔ ان کے دور میں ایک نہایت مفلس انسان تھا، اس کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے کو کچھ، مختصر یہ کہ وہ انتہائی غربت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ کو اس نے مٹی میں چھپایا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہو، آج جب تم اللہ سے کلام کرو تو میرا بھی ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھنا، اور اپنے رب سے پوچھنا کہ میرے حالات کب بدلیں گے۔ میں تو مفلسی سے تنگ ہوں، میرے اللہ سے کہو کہ میرے حالات بھی بدل دے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی جواب دے مجھے بتانا کہ میں کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آگے جاتے ہیں تو ایک دوسرا شخص ان سے ملتا ہے۔ وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس رزق کی بہت فراوانی ہے، میرے پاس تو اتنا رزق ہے کہ وہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا رزق تھوڑا کم ہو جائے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے پوچھیے گا کہ مجھے کچھ بتائے کہ میں کیا کروں کہ میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور آگے بڑھ گئے۔ جب کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو رکھا۔
اللہ ताला ने मुझसे फरमाया कि जो पहला शख्स आपसे मिला है, जो गरीब है, मुफ्लिस है, लाचार है, उससे कहो कि मेरा शुक्र अदा किया करे। जब वो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उसके हालात को बदल दूंगा। और जो दूसरा शख्स आपसे मिला जिसने कहा कि मेरे पास रिस्क की फरावानी है, दौलत के अंबार ही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो कम हो जाए, तो आप उससे कहिए कि मेरी नाशुक्री किया करें, तो नाशुक्री करने से उसके रिस्क में कमी आ जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और जब दौलतमंद आदमी से मिलते हैं तो उस वक्त वो शख्स अपने बाग में बैठा हुआ अनार खा रहा था और उसने अभी अभी अनार तोड़कर उसका एक दाना अपने मुंह में डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारा रिज़्क कम हो जाएगा। उसने कहा कि मैं उस गरीब रब की नाशुक्री कैसे अदा करूं जो मुझे ये रिज़्क अता करता है। अभी यही उस शख्स का कहना था कि उसके हाथ से वो अनार नीचे गिर पड़ा। जब नीचे देखा तो वहाँ अनार की जगह हीरे जवाहरात बन गए थे। अल्लाह ताला को शुक्र बहुत पसंद है। उस शख्स के शुक्र अदा करने से अल्लाह ने उसके हाथ में पकड़े हुए अनार को भी हीरा बना दिया। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और उस मुफ्लिस और नदार आदमी के पास है, उससे कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे भी हालात बदल दूंगा। इस मुफ्लिस आदमी ने कहा कि मैं शुक्र किस बात का अदा करूँ, मेरे पास है क्या। अभी यही कहा था कि जिस मिट्टी में अपने आप को छुपाया हुआ था अल्लाह ताला ने वो भी हटा दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला को शुक्र बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा शुक्र अदा करते रहा करो। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि तुम पर कैसे भी हालात आए लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहा जाता है कि एक औरत जो कि बे औलाद थी, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप जब भी खुदा से कलाम करने जाएं तो पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि फ़लाँ औरत ने मुझसे ये सवाल करने को कहा था कि उसकी औलाद कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात आकर उस औरत को बता दी। वो औरत ये सुनकर मायूस हुई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उस औरत के घर के पास से एक फकीर गुजरा। उसने सदा लगाई, जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसके लिए नेक औलाद के लिए दुआ करूँगा। जब ये सदा उस औरत ने सुनी तो फौरन एक रोटी इस फकीर को दे दी। फकीर ने उस औरत के लिए नेक औलाद के लिए दुआ की और चला गया। अल्लाह के फजलो करम और रहमत से और उस फकीर की दुआ के बाद उस औरत की औलाद हुई। वो औरत बहुत खुश हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। उस औरत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, मगर अल्लाह ने एक फकीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाज दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अल्लाह के हजूर हाजिर हुए और कहा कि है अल्लाह, ये क्या माजरा है, तूने तो फरमाया था कि इस औरत की कभी औलाद नहीं होगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि है मूसा, पहले तो जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले आ और फिर आप पर तेरे सवाल का जवाब दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। वो वापस अल्लाह के हजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा ये तो एक और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म था इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी कहीं से इंसान के गोश्त का टुकड़ा ना मिला तो वो शख्स करते करते एक जंगल में पहुंच गए। इस जंगल में वही फकीर बैठा हुआ था जिसने उस औरत के लिए बच्चे की दुआ की थी। उस फकीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान कर दिया। यह माजरा सुनकर उस फकीर ने कहा, सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, वो चाकू बे। आपके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाकू निकाल कर उसे दे दिया। चाकू लेकर उस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि फकीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया हो, मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर देता हूँ।
उस फकीर ने अपने हाथ से खाते से पेट से और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और अल्लाह के हजूर जाकर हाजिर हुए और कहा कि गोश्त के टुकड़े ले आया। अल्लाह ने फरमाया किसके गोश्त के टुकड़े हैं। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बयान कर दी और कहा कि फलां जंगल में मुझे एक फकीर मिला था, उसी के जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए, तो क्या मैं इसके कहने पर उस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ऐ मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और उस औरत के लिए भी दुआ कर सकता था, मगर तूने नहीं की। उस फकीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने कबूल कर ली। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज रखता है और खुदा का ज्यादा अजीज बंदा वही है जो कसरत से उसका शुक्र अदा करे। आज मैं जो वजीफा बता रहा हूँ, आपके हालात जैसे भी हैं, आप बेशक खुशहाल हैं या तंगदस्त हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो, नमाज पढ़े, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे। जो साहिब इस्तिताअत है यानी जिनके पास ज़्यादा माल है वो ज़कात भी लाज़मी दें, अपने मालों को हलाल करें, अल्लाह के हुक्म पर जो है उसकी तामीर करें और अपने मालों की ज़कात दें। और जिनके पास नहीं है वो जिस भी हाल में है अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में लाएं और हमेशा के लिए इसे अपना मामूल बना लें कि हमने रोज़ाना 2 नफल सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से इसकी दी हुई नियमतों का शुक्र अदा करना है। जो भी उसने हमें अता किया है अल्लाह ताला का शुक्र है। उसने हमारे तमाम अज़ा को दुरुस्त बनाया है, अंधा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया। फिर उसके बाद तीसरा शुक्र तो ये बनता है कि आपको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाया। ये ऐसी उम्मत है कि जिसकी हर नबी ने ख्वाहिश की थी। इसके अलावा भी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये वजीफ़ा ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाइए। का मेरा मशवरा तो ये है कि अगर हो सके तो आप इस वजीफ़े को हर रोज़ ही करें, नहीं तो हफ्ते में लाजमी करें। इसके लिए पहले आप 2 नफल सलातुल हाजात के पढ़िए, उसके बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद 180 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से फिर जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाएगा, आपके लिए अपनी रहमत और बरकत के दरवाजे खोलेगा और आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे उसे आपके लिए सोना बनाएगा। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हर हाल में मेरे रब का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि कैसे अल्लाह ताला आप पर भी मेहरबान होती है। रब किस तरह से आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे और अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। मेरी गुजारिश है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब से जुड़े रहिए, अल्लाह से जुड़े, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही मांगिएगा। इंशाअल्लाह ताला कभी भी नामुराद और मायूस नहीं लौटेंगे। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि हाथ उठाने पड़ी और वो खाली लौटें, लेकिन शर्त सिर्फ ये है अल्लाह से मांगना सीखिए। आखिर वो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस वीडियो में की गई कमी कोताही को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुआफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।